Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I, Ms. Sadia Iqbal, on behalf of Garrison Academy Senior Campus, welcome you all to AppSex Online Support Program. This is 8th week going on in D2. In the first part, today, inshallah, we are going to start a new exercise 2.5, very important exercise, अब से बल्कि आखिर तक ही बहुत important exercises हैं. Anyways, today we will be learning inshallah about differentiation of trigonometric functions. Basically ये आपके लिए एक नया topic होगा of today, trigonometric functions की differentiation, right? And then inshallah we will be doing question number 2 up till question number 9. Of course I haven't started from question number 1, there would be a reason behind it, of course. So let us get started. Exercise 2.5, you can see your question number 1, basically it is about differentiation of trigonometric functions, indeed, but by first principle, right? बड़े lengthy और important questions हैं ये दो पार्ट, स्पेशली बहुत important questions हैं इसके, तो लेकिन we will be doing it later on, ठीक है. Today I have decided to make you do question number 2 up till question number 9. अगले पेज पे हैं. Look at question number 2, differentiate with respect to variable involved, then 3, 4, 5. ये बहुत important questions हैं, ये भी ये important parts हैं. This one very important. And then you can see over here these questions are very important from examination point of view. Please start looking at your past papers, ठीक है, वहाँ से भी बड़ा पता चलता है इंसान को. In the next lecture इंशाल्लाह जो हमारा फ्राइडे को होगा, we will be learning about question number 10 to onwards. बट ये क्वेश्चंस, ये स्पेशली ये जो 3 हैं, 4, ये 6, 7, 8, 9 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. सो फर्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में हम अब तक 5 करेंगे एंड देन नेक्स्ट में 6 to 9, ठीक है जी. ओके, लेट अस गेट स्टार्टेड विद डेरिवेटिव्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. If you all remember, I did send you this image of derivative of trigonometric functions. I asked you to learn these by heart, right? मैं फिर से जल्दी से रिपीट कर देती हूँ. डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ एक्स इज़ कॉस ऑफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कॉस ऑफ एक्स इज़ माइनस साइन ऑफ एक्स, ठीक हो गया. डेरिवेटिव ऑफ टैन ऑफ एक्स इज़ सीकेंट स्क्वायर एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कोसिकेंट एक्स इज़ माइनस कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स. Derivative of secant x is plus secant x tan x. Derivative of cot is माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स. अब यहाँ पे देखिए इन दोनों को, tan का डेरिवेटिव इज सीकेंट स्क्वायर एक्स, यानी tan हमेशा सीकेंट के साथ रिलेटेड होगा, एंड cot का डेरिवेटिव इज माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स. cot वुड ऑलवेज बी रिलेटेड विद कोसिकेंट स्क्वायर एंड tan would always be related with secant, right? Then cosecant का डेरिवेटिव इज माइनस कोसिकेंट एक्स cot x, वही बात cosecant भी cot के साथ रिलेटेड है, और secant का डेरिवेटिव प्लस secant x tan x. ये आपने बाय हार्ट याद किए होंगे तो ये एक्सरसाइज आज आप कर सकेंगे इंशाल्लाह. ओके, आई हैव गिवन सम एग्जांपल्स ओवर हियर जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि अगर तो मेरा एंगल सिंपल थीटा होता, you know, this is simple theta, so what would be derivative of this secant theta with respect to theta? अगर theta यूज हुआ है वेरिएबल, so I'll be taking change in this with respect to theta, so that would be d by d theta. अच्छा, what would be the derivative of this with respect to theta? We just memorized this, we just learned it. क्या था वो? It was secant theta tan theta. ऐसा ही है. अगर तो ये सिंपल थीटा होता तो ये आपका डेरिवेटिव होता, क्योंकि फर्दर डेरिवेटिव ऑफ दिस थीटा विच इज़ योर एंगल थीटा का अगर हम फर्दर डेरिवेटिव लेते विद रिस्पेक्ट टू थीटा तो वो क्या होता 1. तो हमारा अल्टीमेट आंसर क्या होता सेकेंड थीटा टैन थीटा. इस 1 को हम ना भी लिखते, ठीक हो गया. बट हियर व्हाट डू वी हैव चेंज इन दिस सेकेंड 4x विद रिस्पेक्ट टू x. तो ये क्या होगा? इट वुड बी सेकेंड 4x इंटू टैन 4x. क्या बस इतना ही? नो, फर्दर डेरिवेटिव ऑफ व्हाट? ऑफ दिस एंगल विच इज़ 4x. Clear? Now what is my answer? It would be secant 4x into tan 4x into what is the derivative of this 4x? 4 being constant बाहर आ जाएगा और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा? 1. So what is my answer? 4 secant 4x tan 4x. ठीक है, like this would be your answer. Look at the next one, this one. You can see here power rule. पावर है ना, पावर है tan के ऊपर. विद रिस्पेक्ट टू थीटा हम इसमें डेरिवेटिव लेंगे. व्हाट वुड दैट बी? इट वुड बी, पहले पावर आ जाएगी, इट वुड बी 3 tan 3 minus 1 थीटा. मतलब पावर में से एक माइनस जो हमने पावर रूल सीखा हुआ है, इनटू क्या बस इतना? नो, फर्दर डेरिवेटिव ऑफ जिस फंक्शन की पावर है. व्हाट इज़ दैट फंक्शन? tan ऑफ थीटा. क्लियर? नाउ व्हाट वुड बी माई आंसर? इट वुड बी 3 tan square of theta into what is derivative of tan theta with respect to theta? क्या होता है?
secant square theta. So now what is my answer? 3 tan square theta into secant square theta, just like that. Okay, now look at the next example, this one. चेंज इन secant स्क्वायर थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा. कैसे करेंगे हम? पहले आ जाएगी आपके पास पावर विच इज़ 2, सो इट वुड बी secant ऑफ थीटा और 2 - 1. ठीक हो गया? इनटू क्या? बस नो, फर्दर डेरिवेटिव ऑफ secant थीटा. लेट्स डू इट. 2 में से 1 माइनस हुआ, इट वुड बी अगेन 1, सो इट वुड बी 2 secant थीटा इनटू व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस? वी ऑल नो इट इज secant थीटा tan थीटा इंटू फर्दर डेरिवेटिव ऑफ थीटा क्या होगा? 1. वो ना भी लिखें. सो द फुल आंसर इज 2 secant स्क्वायर थीटा tan थीटा. आई जस्ट वॉन्ट यू पीपल टू हैव सम प्रैक्टिस ऑफ दीज. सिंपल समझ आएंगे तो आप कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस की तरफ जा सकेंगे. ओके, ये सारी वैल्यूज़ आपके आगे बाय द वे क्वेश्चंस में यूज़ हुई हुई हैं. d/dx ऑफ दिस थिंग, लुक एट दिस. कॉस की कोई एंगल है, एंगल इज़ रेडिकल ऑफ x. तो पहले तो हम कॉस पे अप्लाई करेंगे, दैट वुड बी माइनस साइन radical of x. Done. Now further derivative of this radical, क्योंकि this is your angle और angle is not simple x. simple x होता तो हम 1 लिख के उसको छोड़ भी देते, but this is now radical of x. So further derivative of the angle, what is my answer now? Minus sine into radical of x, जो भी उसका angle है, into what would be derivative of this? Think about it. I have told you people, जब भी radical हो उसका डायरेक्ट क्या होता है? 1/2 radical of x, और न्यूमिरेटर में आप फर्दर डेरिवेटिव उस फंक्शन का ले लेते हो. तो फंक्शन हमारे पास x है, x का फर्दर डेरिवेटिव इज़ 1. सो व्हाट इज़ माय आंसर? माइनस साइन रेडिकल ऑफ x डिवाइडेड बाय 2 रेडिकल ऑफ x. प्लीज़ बॉयज़ एंड गर्ल्स, ये वाला रेडिकल ऑफ x और ये वाला रेडिकल ऑफ x कभी भी कैंसिल आउट नहीं होंगे. वाई नॉट? बिकॉज दिस इज़ एंगल ऑफ साइन ऑफ x एंड दिस इज़ विद द 2. ठीक है जी. ओके, लुक एट द नेक्स्ट एग्जाम्पल. सॉरी, लुक एट दिस नेक्स्ट एग्जाम्पल. व्हाट इज़ इट? होल रेडिकल ऑफ साइन ऑफ x, इसका डेरिवेटिव. अब वी कैन सी ये पावर के अंदर बंद हुआ हुआ है 1/2 पावर के अंदर. तो अगर हमारे पास, अभी आपको मैंने बताया कि अगर रेडिकल ऑफ x होता तो हम उसका d/dx कैसे लेते? हम कहते ओके 1/2 रेडिकल ऑफ वट एवर द थिंग इज़ वो इंटू फर्दर डेरिवेटिव ऑफ जो फंक्शन होता विच इज़ 1. तो यहाँ पे होता 1/2 रेडिकल ऑफ x. ऐसा ही है. बट हियर व्हाट इज़ द केस? वी हैव d/dx ऑफ रेडिकल ऑफ साइन ऑफ x. ठीक है जी. तो इसका रेडिकल क्या होगा? सॉरी, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 1/2 रेडिकल ऑफ जो भी आपके पास चीज़ थी वो इनटू फर्दर डेरिवेटिव ऑफ क्या चीज़? जो आपका, सॉरी ये x है, जो आपका फंक्शन था अंदर, वो क्या था? साइन ऑफ x. लेट अस सी द आंसर नाउ. व्हाट वुड बी द आंसर? d/dx ऑफ साइन क्या होता है? cos x डिवाइडेड बाय 2 रेडिकल ऑफ साइन ऑफ x. Now I hope these all are clear to you. ये एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट थी, इस लिहाज से इंपॉर्टेंट थी कि ताकि आपके अगले क्वेश्चंस हो जाएं. नाउ लेट अस गेट स्टार्टेड विद द क्वेश्चंस. वीडियो थोड़ी ज़्यादा ही लंबी हो गई एक्सप्लेनेशन, बट दिस वाज इंपॉर्टेंट. अब आप आराम से कर लेंगे अगर आपको वो एग्जाम्पल्स इंशाल्लाह अच्छे से समझ आ गई हैं. नाउ यू विल बी एबल टू डू क्वेश्चन नंबर 2 ईजीली. वाई? बिकॉज लुक एट द क्वेश्चन. डिफरेंशिएट द फॉलोइंग. ओके, लेट मी जूम इट इन अ बिट. डिफरेंशिएट द फॉलोइंग वेरिएबल्स विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल इन्वॉल्व. वेरिएबल इन्वॉल्व का मतलब है इस क्वेश्चन की डिफ्रेंसिएशन होगी विद रिस्पेक्ट टू x. कॉमन सेंस की बात है, x बीइंग द वेरिएबल. इस क्वेश्चन की डिफ्रेंसिएशन होगी विद रिस्पेक्ट टू थीटा. वाई? बिकॉज थीटा बीइंग द वेरिएबल. इसकी भी थीटा, इसकी भी x. सो दैट्स ऑल दे आर आस्किंग यू टू डू. ठीक है. अब डिफरेंट क्या है इन क्वेश्चंस में, डिफरेंस क्या है इन क्वेश्चंस में एंड इन माई एग्जाम्पल्स? द डिफरेंस इज, यू कैन सी ओवर हियर, दिस इज x स्क्वायर इंटू secant 4 ऑफ x. नाउ x स्क्वायर अलजेब्रिक फंक्शन, secant 4x trigonometric functions. So दो different functions आपस में multiply हो रहे हैं. So how would we differentiate these two? We will be taking product rule, है ना. product है दो variables का, sorry दो different functions का. So we will be applying product rule. कैसे? Look at this. Your first step would always be let y is equal to this. वो हमें पता है. ठीक हो गया. Now we will be finding derivative. And how would we find the derivative? Look at this. By using product rule. x square into secant 4 of x. So हम क्या करेंगे? This being my first function, this being my second function. Let us apply our product rule. How would we do that? And derivative of y इस साइड पे, ये with respect to x, change in y with respect to change in x. and इसके ऊपर भी अप्लाई किया. नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या किया? प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया यहाँ पे. कैसे? फर्स्ट फंक्शन यानी x स्क्वायर एज इट इज़ इंटू डेरिवेटिव ऑफ secant 4x प्लस secant 4x एज इट इज़ इंटू डेरिवेटिव ऑफ
एक्स स्क्वायर। ठीक हो गया। अभी वी जस्ट डिस्कस्ड दिस थिंग इन डिटेल कि सीकेंट 4x का हम डेरिवेटिव कैसे लेंगे। सो आई सिंपली रोट हियर एक्स स्क्वायर एज इट इज़, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा, सीकेंट 4x इंटू टैन 4x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 4x, यानी फर्दर डेरिवेटिव ऑफ द एंगल हमने अभी डिस्कस किया पीछे, प्लस सीकेंट 4x एज इट इज़, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव इज़ 2x, पावर पहले आ जाएगी। ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टेप में एक्स स्क्वायर एज इट इज़ ये है, सीकेंट 4x टैन 4x ये है, एंड व्हाट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ दिस 4x, 4 कांस्टेंट बाहर ही रहा, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x वुड बी 1, सो व्हाट इज़ इट 4 सिंपली, और बाकी ये, तो आप इनको मल्टीप्लाई करके ओपन करके दिस वुड बी योर कंप्लीट आंसर, दैट्स इट, नॉट डिफ़िकल्ट एट ऑल। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है एंगल्स का लेने का तो लुक एट दिस क्वेश्चन नाउ। थोड़ा सा ही एक्सप्लेन करूँगी, बाकी डिटेल में हम कर चुके हैं। ठीक है जी। बेसिक इसमें एक्सप्लेनेशन की क्या ज़रूरत है, इसकी होल पावर है 2, ठीक है, इनसाइड कोई फंक्शन है और उसकी होल स्क्वायर है, राइट। सो पावर रूल सबसे पहले तो लगेगा, इट वुड बी डी बाई डी थीटा ऑफ वाई इक्वल्स टू डी बाई डी थीटा ऑफ दिस होल थिंग, राइट। सो व्हाट वुड इट बी नाउ, 2 बीइंग पावर पहले आ गया, और इस पूरे की पावर में से 1 माइनस 2 माइनस 1 इट वुड बी 1, वो आपके पास ये वाली टर्म बन गई। ठीक हो गया। क्या हम इधर ही रुक जाएंगे, नो, फर्दर डेरिवेटिव ऑफ दिस इनसाइड थिंग वो क्या होगा, डी बाई डी थीटा ऑफ साइन 2 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा, इसका हम डेरिवेटिव लेंगे। अब कैसे लेंगे, लुक एट दिस, ये फंक्शन एज इट इज़ रह गया, ये जो था हमारे पास, वी चेंज इट, ये जो फंक्शन है ये यहाँ पे भी एज इट इज़ रह गया, हमने इसको कुछ नहीं करना। व्हाट डू वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस होल थिंग नाउ, और वो कैसे होगा, साइन 2 थीटा फंक्शन है और कॉस 3 थीटा फंक्शन है। ठीक है जी, गौर से देखें, कॉस 2 थीटा, सॉरी कॉस 2 थीटा, ओके नाउ लुक एट दिस वन, कॉस 2 थीटा, सॉरी साइन 2 थीटा, इसका मुझे डेरिवेटिव लेना है। व्हाट वुड दैट बी, साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, cos थीटा, बट हियर इट इज साइन 2 थीटा, सो इट वुड बी cos 2 थीटा। क्या हम इधर ही रुक जाएंगे, नो, फर्दर डेरिवेटिव ऑफ द एंगल, बिकॉज एंगल इज नॉट थीटा लाइक दिस, एंगल इज 2 थीटा, अगर एंगल 2 थीटा है सो इट वुड बी डी बाई डी थीटा ऑफ 2 थीटा लाइक दिस, और उसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2 थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्या होगा, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से 2x का होता है विद रिस्पेक्ट टू x, सो व्हाट वुड दैट बी, इट वुड बी 2 इंटू 1, वाई 1, बिकॉज थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा वुड बी 1, so that's how you're gonna do this। ये cos थीटा इंटू दिस, इसका आंसर क्या आएगा, cos 2 थीटा इंटू इसकी जगह क्या आ जाएगा 2 सिंपली, कैन यू सी दिस, ओके नेक्स्ट लुक एट दिस, cos 3 थीटा, बाहर भी माइनस है, दिस वन एज इट इज़, cos थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन थीटा, बट हियर वी हैव cos 3 थीटा, सो इट वुड बी माइनस साइन 3 थीटा, क्लियर, इंटू डी बाई डी थीटा ऑफ दिस 3 थीटा, ये वाला, clear। what is the derivative of this 3 theta, it would be simply 3, theta का derivative with respect to theta would be 1, so the answer would be, you can see over here, ये वाला minus, okay let me see, ये दोनों minus मिलके क्या हो जाएंगे plus like this, and sin 3 theta into this 3 would be multiplied like this। ठीक है जी, no need to multiply these like that like in detail, आप simply जैसे ये था 2 into this और ये वाली जो भी bracket बनेगी ये, this would be your answer, no need to multiply it furthermore। ठीक हो गया। look at the last example जो मैंने question की part जो मैंने दिया हुआ है, देखिए students, we have discussed this example and this example in detail in the previous question, previous slide if you remember, when I was giving you people the concept, the basics, right। so बिल्कुल उसी तरह से you have to apply dy by dx on both sides, इस side पे भी इस side पे भी, here it would be you know derivative would be taken like this, plus plus करके, and rest of the thing I have explained in the previous slide, so वहीं से आप इसको देख लीजिएगा, it is not a big deal, okay। important question, very very simple this one, look at this, look at this, dy by dx if y is equal to x cos of x, cos of y is equal to x cos y is equal to x cos y, okay, we will be taking derivative on both sides with respect to x, y x, ये देखिए, because they have asked you to find dy by dx, इसलिए, वरना दोनों ही वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं, y is equal to x cos y, okay, y is equal to x cos y,
I have to find dy by dx. So I'll be finding change in y with respect to change in x, dy by dx. So मैं क्या करूँगी, differentiating on both sides with respect to x करके देखते हैं. It would become dy by dx is equal to, यहाँ पे क्या सीन है, here you can see two functions, एक है x और एक है trigonometric function. So it would be first function, this x would be first function, and this cos y would be second function. Product rule, let us apply it. First function into derivative of second function plus second function as it is into derivative of first function. ठीक हो गया? Let us get the answers now. X as it is, what is derivative of this cos y with respect to x? पहले तो cos y का करते हैं, it would be minus sin y. Okay, fine. Now the angle is y, so further derivative of this y with respect to x क्या बन जाएगा, dy by dx. Getting it? Plus cos y as it is, what is derivative of x with respect to x? This is 1. Let us multiply the whole term. This is dy by dx, by the way. Okay, now look at this, have a look. This is dy by dx sin of ये x मल्टीप्लाई हो जाएगा, so it would be minus x sin y into dy by dx. This is cos y. तो dy by dx की एक ये टर्म ये पूरी और एक टर्म इस साइड पे. what would we do, we will bring this value of dy by dx into minus sin y, x sin y to this side, and this would be added into this dy by dx. Let me show you here. Look at this. This is what we got, right? Equals to dy by dx. So क्या करेंगे, इसके पास भी dy by dx है, इसके पास भी dy by dx है. You have to find dy by dx. So you'll be separating dy by dx on one side like this. ये you took this term to the other side, it became plus on the other side equals to 2 cos y. Now what do you have to do, you have to take common dy by dx, ये चीज़ बच गई, and this would be divided on the other side, and this would be your आंसर. क्लियर? बिल्कुल इसी तरह इसका सेकेंड पार्ट है जो आप खुद करेंगे. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, बिट लेंथी, वेरी लेंथी येट ईजी, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी. ओके, लेट्स हैव अ लुक ऑफ क्वेश्चन नंबर 4. वेट अ मिनट, I have to see one thing. Question number 5. What is question number 5? ओके, ये आप खुद ही करेंगे, ठीक हो गया. मतलब I'll make you do of course, but in the next video. Okay. Question number 4. Okay, now question number 4 देखें ज़रा. Question number 4 is y is equal to cos of this function. जो भी है, जो भी इसका एंगल है. अब एंगल इतना ह्यूज है. So as we all know, we will be finding derivative on both sides, so it would be dy by dx equals to what, cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एंड फर्दर जो भी उसका एंगल है वो आ जाएगा. क्या हम इधर ही रुक जाएंगे? नो, फर्दर डेरिवेटिव ऑफ दिस होल थिंग. विच होल थिंग? ये जो इसका एंगल है, इस पूरे का डेरिवेटिव फर्दर. नाउ इफ़ यू रिमेंबर योर क्वेश्चंस फ्रॉम एक्सरसाइज 2.3, how we find there, how did we find there the derivatives of these things? किए थे ना हमने 2.3 में ऐसे क्वेश्चंस. क्या किया था हमने, रेडिकल को ऊपर और नीचे सेपरेट कर लिया था. वो भी कर सकते हैं आप. एंड देन क्वोशंट रूल, यू कैन डू दैट. एंड यू कैन डू वन मोर थिंग. व्हाट इज़ दैट? अच्छा, यहाँ पे भी सिंपली वाओ, क्वोशंट रूल इज़ अप्लाइड. यू कैन डू इट जस्ट लाइक दैट. ये 2.3 का कॉन्सेप्ट आप कर चुके हैं, सो अप्लाई इट ओवर हियर. बिल्कुल उसी तरह से क्वोशंट रूल अप्लाई हुआ. दिस माइनस साइन इनटू दिस थिंग वुड रिमेन आउटसाइड द वे इट इज़, कीप इट आउट देयर. इसको आप यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेंगे, एंड आफ्टर द सिंप्लीफिकेशन यू कैन सी ओवर हियर. ठीक है जी, बिल्कुल उसी तरह से सिंप्लीफाई किया लाइक दिस. रिमेंबर बॉयज़ एंड गर्ल्स, ये वाला एंगल ऑफ साइन कैन नेवर बी कैंसल्ड आउट विद एनीथिंग. इन सब में से कोई भी वैल्यू इस साइन के इन वैल्यूज़ को कैंसिल आउट नहीं करेगी. नेवर. वाई? बिकॉज दिस इज एंगल ऑफ साइन एंड दिस इज़ द वैल्यूज़. क्लियर? So I'll be meeting you inshallah people in the next video with question number 5 and onwards.